خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 4 of the novel طوائف از قلم ہمنا تنویر. سورج کی گرم نرم کرنیں کمرے میں آ رہی تھی. شاہ نے آنکھیں کھولی. چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا جو آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی. شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سمیٹا تھا. شاہ کے لمس پر مہر کی آنکھ کھل گئی تھی. مہر آنکھیں جھپکاتی شاہ کو دیکھنے لگی. شاہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی. مہر اس کے ہاتھ ہٹاتی ہوئی اٹھ بیٹھی. روشن پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں. گلدان تم نے توڑا تھا؟ شاہ یاد آنے پر بولا تھا. کیوں، تمہارے جہیز کا تھا کیا؟ مہر بیزاری سے بولی. تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے. شاہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے. تم بھی تو اپنی حد سے باہر نکلتے ہو. مہر بیڈ سے اترتی ہوئی بولی. جا کر صاف کرو جو گند پھیلا رکھا ہے. شاہ قہر برساتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا. ملازم نہیں ہوں تمہاری، اپنی حویلی سے 2-4 ملازم لے آؤ. مہر الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی تھی. شاہ برہمی سے اسے دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا. ایک طوائف ہو کر تم میرے آگے زبان چلاتی ہو. کسی میں اتنی ضرورت ہے؟ کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ میرے آگے جواب دے. شاہ تیش میں چلایا تھا. میں مہر ہوں، میرا موازنہ دوسروں سے کرنے کی کوتاہی مت کرنا. مہر چبا چبا کر بولی تھی. تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میں اس کی زبان کٹوا چکا ہوتا. شاہ اس کے بال دبوچتا ہوا بولا تھا. تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، مہر ماں کھڑی ہے. مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی تھی. شاہ کلس کر مہر کو دیکھنے لگا جو نڈر سی کھڑی تھی. جھٹکے سے اس کے بال آزاد کرتے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا. ملازم کب بھیجو گے؟ مہر الماری میں کپڑے دیکھتی ہوئی بولی تھی. ملکہ نہیں ہو تم جو ملازم آئیں گے خود کرو سارے کام. شاہ ہنکارا بھرتا ہوا باہر نکل گیا. مہر نفی میں سر ہلاتی ہوئی چلنے لگی. سین چینج. حرم کلاس میں کھڑی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی. اصلان نے اندر جھانکا. حرم کو دیکھ کر صبح والا واقعہ یاد آ گیا. تاؤ کھاتا ہوا حرم کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا. حرم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی. اصلان کو دیکھ کر حلق خشک ہو گیا تھا. صبح میں بول رہا تھا اور تم بھاگ گئی؟ اصلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا تھا. حرم پیچھے ہٹنے لگی. نہیں، وہ مجھے جانا تھا. حرم سنبھل کر بولی تھی. کون سے تمہارے بچے رو رہے تھے؟ بتاؤ ذرا مجھے بھی. اصلان تیوری چڑھا کر بولا تھا. اصلان اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور حرم الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی. مجھے کلاس، ہاں کلاس لینی تھی مجھے. حرم سوچتی ہوئی بولی. میرا خیال ہے میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یا سر تمہیں اکیلے کو پڑھاتے ہیں؟ اصلان چبا چبا کر بولا تھا. حرم ڈیسک سے ٹکرائی تھی اور بمشکل گرنے سے بچی تھی. میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، تم کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی. یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. خود میرے پیچھے پڑی ہوئی ہو اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو. اصلان آگے ہوتا ہوا گھورنے لگا تھا. میں نے کیا کیا؟ حرم معصومیت سے بولی تھی. صبح مجھے پین کس نے مارا تھا؟ اصلان گھورتا ہوا بولا تھا. وہ تو ہوا نے مارا تھا، میں نے تو نہیں. حرم صاف مکر گئی تھی. سیفی بلا رہا ہے تمہیں. حرم اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی تھی. اصلان نے چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں. حرم مضبوطی سے بیگ پکڑے سائڈ سے نکل گئی. اصلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا. سین چینج. زوناش، میں نے سنا ہے حرم اور اصلان کا افیئر چل رہا ہے. زوناش کلاس میں بیٹھی تھی جب اس کے عقب میں بیٹھی ہوئی لڑکی رازداری سے بولی تھی. ان دونوں کا نکاح ہوا پڑا ہے. زوناش بیزاری سے بولی تھی. اوہ اچھا میں سمجھ گئی. نہ جانے کتنے لوگوں کو زوناش جواب دے چکی تھی اور ابھی بھی بہت سے پوچھ رہے تھے. سین چینج. اسے تیار کر، آج یہ مجرا کرے گی. زلیخا بیگم حرائمہ کو خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی تھی. میں کیسے؟ حرائمہ بوکھلا گئی تھی. زیادہ بکواس کی تو ابھی 2-4 آدمیوں کے سامنے ڈال دوں گی. زلیخا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا. حرائمہ لب کاٹتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی. بانی تیار کر اسے. وہ حکم صادر کر کے باہر نکل گئی تھی. حرائمہ اشک بہاتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی. بانی ہنکارا بھرتی ہوئی اس کے پاس آئی. حرائمہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھنا. جتنی جلدی اس ماحول میں خود کو سیٹ کر لو گی بہتر ہوگا، کیونکہ بیگم صاحبہ ترس کھانے والوں میں سے نہیں ہیں. بانی بولتی ہوئی کپڑے نکالنے لگی تھی. حرائمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا. کچھ ہی دیر میں بانی اسے تیار کرنے لگی. حرائمہ جو زندگی میں میک اپ کے نام پر آج تک صرف لپسٹک لگاتی آئی تھی، اتنا ہیوی میک اپ پھر جولری، وہ کوئی اور حرائمہ لگ رہی تھی. حرائمہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو پہچاننے سے انکاری ہو گئی. یہ گھنگرو پہنو اب. بانی سنگار میز پر گھنگرو پھینکنے کے سے انداز میں رکھتی ہوئی بولی تھی. حرائمہ نم آنکھوں سے گھنگرو کو پہننے لگی. اس کا ظاہر مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا
और इस वक्त वो एक तवायफ मालूम हो रही थी। अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो बेगम साहिबा छोड़ेंगी नहीं। याद रखना, ये जो आदमी बैठे हैं ना, कुत्तों की मानित पड़ जाएंगे तुम्हें। बानी इसे साथ लिए चल रही थी। हरायमा की आंखों में खौफ तैरने लगा था। इतने आदमियों के सामने मुजरा करना खुद पर लानत डालने के मुतरादिफ लग रहा था। वो गरीब थी लेकिन इज्जतदार थी, लेकिन इसका हुस्न ही इसके गले का तोक बन गया था। कुछ लोग गिला करते हैं कि हमें फलां जैसा हसीन क्यों नहीं बनाया, फलां जैसे बाल, फलां जैसी नाक, फलां जैसा रंग क्यों नहीं दिया। इन्हें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने जैसा बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, वरना आज हरायमा की हालत देख लें, जो अपनी खूबसूरती पर शिकवे शिकायतें कर रही थी। न इसके पास ये रंग रूप होता, न जिंदगी इस पर तंग होती। अल्लाह बेहतर करता है लेकिन इंसान समझने से कासिर है। हरायमा खुद को लानत मलामत करती हुई चलती जा रही थी। हरायमा को लग रहा था इसका जनाजा निकलने वाला है, क्योंकि मर वो तो इसी दिन गई थी जिस दिन जुलेखा बेगम ने इसे अजार के सुपुर्द किया था। बस इसका जिस्म मिट्टी में दफन होना बाकी था। आज ये रस्म भी होने वाली थी। मध्यम मध्यम रोशनियां जल रही थीं। हरायमा वस्त में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि रानी इसे सिखा चुकी थी रक्स। हरायमा ने अपने जमीर का जनाजा पढ़ा, आंखें बंद की। मौसीकी सुनाई दे रही थी। तमाम इज्जतदार अफराद बेसब्री से इस नई बेहया दोशीजा को देख रहे थे। हरायमा इर्द गिर्द से बेगाना हो गई। वो थी और मौसीकी की धुन। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। हरायमा के रुखसार आंसुओं से तर हो चुके थे। वो सब कुछ भूल कर रक्स कर रही थी। किसी की जान निकल रही थी और किसी को लुत्फ आ रहा था। इनकी तफरीक के एवज एक जान मौत के घाट उतार दी गई। हरायमा खुद पर गलीज नजरें महसूस कर रही थी, जो खुद को इज्जतदार कहलवाते थे, जबकि बेगैरत तो वही थे। हरायमा घूम रही थी और घूमती घूमती जमीन पर गिर गई। वहां बैठे अफराद समझ रहे थे कि शायद वो खुद बैठी है। बानी घबराकर इसके पास आई और इसे अपने साथ लगाए चलने लगी। मौसीकी बंद हो चुकी थी। घुंघरूओं की आवाज भी दम तोड़ चुकी थी। और शायद हरायमा भी। बेगम साहिबा डॉक्टरनी को बुलवाए, मरवर तो नहीं गई है। बानी हरायमा के बेजान वजूद को बेड पर गिराती हुई बोली, हाय हाय कमबख्त, ऐसा क्या करवा लिया है इससे, एक मुजरा ही तो किया है। सुलेखा बेगम मुंह बनाती हुई बोली। बानी इनका फोन लेकर आई और नंबर मिलाने लगी। सीन चेंज। शावेज, आई एम रियली सॉरी, अब तो माफ कर दो। एनी कान पकड़े खड़ी थी और शावेज रुख मोड़े हुए था। एनी, वो मेरे बड़े भाई हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं इनके खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। शावेज सख्ती से बोला था। ओके बेबी, आई प्रॉमिस कभी ऐसा नहीं होगा। एनी इसके हाथ थामती हुई बोली थी। एनी शावेज के सीने से लगी हुई थी। शावेज के लब धीरे से मुस्कुराए। दोनों दोनों बाजू एनी के गिर्द हायल करके शावेज ने आंखें बंद कर ली थी। एनी भी मुस्कुराने लगी। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी है, जानते हो? एनी खफगी से बोली। शावेज गाड़ी से टेक लगाकर इसे देखने लगा। गलती भी तो तुम्हारी थी, फिर सजा भी तो मिलनी थी ना। वो शाने उचकाता हुआ बोला। अब देखो, आज भी कितना लेट हो गई हूं मैं। वो चौकीदार 100 सवाल करता है। कहीं गई थी? कहाँ गई थी? क्यों गई थी? किसके साथ गई थी? तुम कह दिया करो अपनी जान से मिलने गई थी। शावेज इसे अपनी जानिब खींचता हुआ बोला। हाँ, ताकि मेरे घर वालों को बुलाकर मुझे हॉस्टल से निकाल दे वो। एनी मुंह बसोरती हुई बोली थी। शावेज ने इसके रुखसार पर अपने लब रखे और सीधा हो गया। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूं। एनी मुस्कुराती हुई फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। हरम खिड़की में खड़ी थी जब इसकी नजर इस सिया गाड़ी पर पड़ी। ये गाड़ी तो शावेज भाई की है। भाई मुझसे मिलने आए हैं क्या? हरम खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई, लेकिन जो ही नजर गाड़ी के अंदर बैठे हुए नफूस पर पड़ी, आंखें बाहर निकल आई। एनी, छोटे भाई के साथ? हरम के लब फड़फड़ाए थे। क्या बोले जा रही हो? अंशरा किताब को घूरती हुई बोली थी। नहीं, कुछ नहीं। हरम संभल कर बोली थी। हाँ, एनी है। मतलब एनी छोटे भाई के साथ? हरम बेयकीनी की कैफियत में बोल रही थी। अब समझ में आया, शुएब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बोलते बोलते हरम की आंखें छलक पड़ी। सही कहते हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बुरा करता है तो इसका बदला इसकी बहन को चुकाना पड़ता है। छोटे भाई की गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। वो बदतमीज मेरी अस्मत को तार तार करना चाहता था। हरम दिल ही दिल में बोलती हुई बेआवाज रो रही थी। मुस्तफा भाई को इल्म हुआ तो कितना दुख होगा इन्हें। छोटे भाई ऐसे तो नहीं थे। हरम आंसू बहाती हुई खिड़की से पार देख रही थी। अच्छा नहीं किया आपने भाई। हरम चेहरा रगड़ती हुई बोली। हरम, किसके साथ बातें कर रही हो? अब की बार आमना बोली थी। किसी के साथ भी नहीं, बस ऐसे ही। हरम जबरा मुस्कुराई। अजलान को फोन करो, कोई उसे बताओ
اس کی بیگم اس کی یاد میں رو رہی ہے، زوناش تنزیہ بولی تھی۔ حرم چہرہ جھکائے اپنے بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ زوناش اور حرم کے بیچ ایک تلخی سی پیدا ہو گئی تھی۔ سین چینج۔ مہر آئینے کے سامنے کھڑی سرخ لپسٹک سے ہونٹوں کو پوشیدہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شاہ ضرور آئے گا۔ بال کھول کر ان میں برش چلانے لگی۔ وہ حسن کی ملکہ شاہ کو تباہ کرنے کی غرض سے ہتھیاروں سے لیس ہو رہی تھی۔ مہر ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ وہ اپنے گھورے ملائم پیروں کو دیکھ رہی تھی جن پر سرخ نیل پالش غضب ڈھا رہی تھی۔ ہاتھوں پر بھی سرخ رنگ کی نیل پالش لگا کر ان کی زینت بڑھا رکھی تھی۔ مہر کو قدموں کی چھاپ سنائی دی تھی۔ لب دم بخود مسکرانے لگے۔ جس کی وہ منتظر تھی وہ آ ہی گیا تھا۔ شاہ اندر آیا تو مہر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ پہچان میں نہیں آ رہی کیا؟ مہر چلتی ہوئی اس کے مقابل آ گئی۔ خاموشی میں پائل کی آواز گونجنے لگی تھی۔ شاہ سرتا پیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی دنوں بعد یہ روپ دیکھا ہے نا تبھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کے چہرے کو چھونا چاہا لیکن مہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں چھونے کا حق نہیں دیا۔ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ سیریسلی؟ شاہ استہزا ہنسا تھا۔ اس کا اشارہ گزشتہ رات کی جانب تھا۔ مہر نے سر جھٹکا تھا۔ میں تمہیں فون دوں گا، اس میں تم وہ بیان سننا جس میں شوہر کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ شاہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا بولا، اور تم وہ بیان سننا جس میں شوہر کے فرائض بیان کیے جائیں۔ مہر تنک کر بولی تھی، شاہ تمہارے حسن کا اسیر ہے لیکن جب تم یہ زبان چلاتی ہو نا باخدا زہر لگتی ہو۔ شاہ اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا تھا۔ مہر نے ہنسنے پر اکتفا کیا۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ شاہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ مہر اس کا ہاتھ ہٹاتی ہوئی بولی، تم وہی کرو گی جو میں بولوں گا۔ بھولو مت، خرید کر لایا ہوں تمہیں۔ شاہ چہرہ موڑ کر بولا تھا۔ چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ میں نے اپنی قیمت نہیں لگوائی تھی سمجھے، تم مجھے زبردستی لائے ہو۔ مہر دانت پیستی ہوئی بولی تھی، واٹ ایور، جیسے بھی آئی ہو ملکیت تو تم میری ہو۔ شاہ لاپرواہی سے کہتا ہوا قدم بڑھانے لگا۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل دی۔ ویسے اس تیاری کی وجہ؟ شاہ آئیبرو اچکا کر بولا تھا، بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں۔ مہر تپ کر بولی، تم میرا دماغ خراب کر دیتی ہو۔ شاہ غصے سے دیکھتا ہوا اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا تھا، تو میں کیا کروں؟ علاج کرواؤ جا کر اپنا۔ مہر شاہ کے بے حد نزدیک تھی۔ علاج بھی تمہارے پاس ہی ہے۔ شاہ وارفتگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، دور ہٹو مجھ سے۔ مہر اس کے سینے پر اپنے دودیا ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب کیا کرو گی؟ شاہ اس کی سمندر جیسی گہری بھوری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ مہر اسے گھورنے لگی۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مہر کچھ سوچ کر بولی، کیسا کام؟ شاہ آئیبرو اچکا کر بولا، مجھے کوٹھے پر جانا ہے۔ کس خوشی میں؟ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، مجھے وہاں سے ایک لڑکی کو نکالنا ہے۔ مہر بغور شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی، کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ مہر اس کی بات پر استحاضہ ہنسی۔ احساس کا مطلب جانتے ہو؟ مہر اسے نکاحوں کے حصار میں لیتی ہوئی بولی، تم جیسے رئیس زادے جان بھی کیسے سکتے ہو، میں بتاتی ہوں۔ شاہ اس کی نکاحوں کے سحر میں جکڑے اسے سن رہا تھا۔ احساس وہ جذبہ ہے جو کسی پرائے کو بھی اپنا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کو نکالنے میں تم میری مدد کرو گے۔ مہر کسی ملکہ کی مانند اس پر حکم صادر کر رہی تھی۔ میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ شاہ بیزاری سے بولا، پھر مجھے بھی بھول جاؤ۔ مہر الٹے قدم اٹھاتی ہوئی بولی، تمہیں تو کہیں نہیں جانے دیتا میں۔ شاہ مہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا، اگر میں چاہوں تو تم مجھے دیکھ بھی نہ پاؤ۔ بلا کا اعتماد تھا اس کی آنکھوں میں۔ شاہ کی نظروں کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا جب مہر نے اس کی بازو پر زخم دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ شاہ کو خطرہ لاحق ہوا تھا، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مہر اس کی جانب دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی تھی، ٹھیک ہے تم اسے نکلوانا کوٹھے سے، لیکن اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو؟ شاہ اس کے عین مقابل آ گیا، تو؟ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی، تو میں خود تمہیں لوگوں کے بستروں کی زینت بناؤں گا۔ اتنے وقت سے شاہ اسے اچھے سے جان چکا تھا۔ مہر کے چہرے کے تاثرات بدلے، مسکراہٹ کی جگہ پھر سے پریشانی نے لے لی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ مہر نے تصدیق کرنی چاہی۔ میں ایسا ضرور کروں گا اگر تم نے حد پار کر کے خود کو نقصان پہنچایا تو۔ شاہ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، پھر بھلا کیسے نہ تڑپتی وہ۔ ٹھیک ہے نہیں کرتی، کل تم مجھے کوٹھے پر لے کر جاؤ گے۔ مہر مفاہمت پر اتر آئی تھی، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی مجھے یہ سب نہیں سوچنا۔ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ مہر پیچھے ہو گئی۔ شاہ اسے خفکی سے دیکھتا رہا اور وہ اثر لیے بنا اندر کی جانب چلنے لگی۔ طوائف سمجھ کر لایا تھا لیکن یہ تو بیوی سے بھی زیادہ روب جماتی ہے۔ شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلنے لگا۔ سین چینج۔ ازلان تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ حرم تمہاری منقوہ ہے؟
सोनाश तकरीबा चिल्लाई थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अजलान लापरवाही से बोला। मनकूहा है तो बीवी भी वही बनेगी ना। फिर मेरे साथ क्यों खेल रहे थे तुमने शायद सुना नहीं है। बीवी घर में होती है और घर में ही अच्छी लगती है। तुम्हें हर्रम से क्या प्रॉब्लम है? अजलान पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं इस हर्रम को तुम्हारे साथ? वो अजलान के करीब आती हुई बोली। करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अजलान इसे घूरता हुआ बोला। जोना शिस्तर सी इसे देखने लगी। अजलान बिना इसकी सुने वहां से निकल आया था। वो क्लास की जानिब जा रहा था जब नजर हरम से टकराई। सिया बालों को जूड़े की शक्ल में मुकीद किए वो किताब पर झुकी हुई थी। चेहरे पर हमेशा की मानद मासूमियत तारी थी। अजलान के लब धीरे से मुस्कुराए। दिमाग ने काम किया तो शरारत सूझी थी। हरम यहाँ आओ। अजलान हरम से कुछ मसाफत पर खड़ा था। हरम चेहरा उठाकर इसे देखने लगी। मैं? उंगली से अपनी जानिब इशारा करती हुई बोली। अजलान ने एक घूरी से नवाजा तो किताब रखती हुई खड़ी हो गई थी। आमना, मैं अभी आती हूँ। सरगोशी करती हुई अजलान की जानिब चलने लगी। हरम सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। अजलान ने इसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। हरम मुंह खोले इसे देखने लगी। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? हरम इसके हमरा चलती हुई बोली। खामोश नहीं रह सकती तुम? अजलान खफगी से बोला था। हरम खामोश होकर चलने लगी थी। मतलूबा मकाम पर पहुंचकर अजलान ने इसे दीवार के साथ लगा दिया। क्या? हरम बौखलाकर इसे देखने लगी। तुमने बाल किससे पूछकर बांधे हैं? अजलान दीवार पर हाथ रखकर इसकी फरार की राह मसरूद करता हुआ बोला था। क्या मतलब? हरम फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। तुमने मुझसे पूछा? अजलान की आंखों में शरारत और चेहरे पर खफकी थी। प्लीज थोड़ा दूर रहकर बात करो। हरम मासूमियत से बोली थी। तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? अजलान घूरता हुआ इसके और करीब हुआ था। हुक्म तो नहीं चलाया, लेकिन प्लीज दूर रहकर बात करो। हरम इसके सीने पर हाथ रखती हुई बोली। तुमने मेरी 2 शर्ट खराब की हैं और लाकर एक दी, दूसरी कौन देगा? अजलान को इसे तंग करने में लुत्फ आ रहा था। तुम्हें एक और शर्ट चाहिए? हर्रम मतहैयर सी बोली। बिल्कुल। अजलान ताईदी अंदाज में बोला था। अच्छा, मैं ला दूंगी, लेकिन मुझे जाने दो अब। अगर किसी ने देख लिया तो भाई को बता देगा। हर्रम फिक्रमंदी से बोली थी। हकीकत तो कोई भी नहीं जानता, फिर कैसे कोई बताएगा? अजलान आईब्रो उचकाकर बोला था। इतनी नजदीकियां हर्रम को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे जाने दो प्लीज। हर्रम ने बाएं जानिब से निकलना चाहा था तो अजलान ने दूसरा हाथ दीवार पर रख लिया था। हरम खफगी से इसे देखने लगी। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। तो जब तक तुम्हारा दिल नहीं करेगा मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी। हरम सदमे से बोली थी। जाहिर सी बात है, जब मेरा दिल करेगा तभी जाओगी तुम। वो लब दबाए मुस्कुराता हुआ बोला था। हाय अल्लाह, कितना बदतमीज है। ये कैसे घूर रहा है? हरम इसे देखती हुई दिल ही दिल में सोचने लगी। अजलान के फोन की रिंगटोन ने दोनों को मुतवज्जा किया था। अजलान पीछे होता हुआ फोन निकालने लगा तो हर्रम भी निकल गई थी। अजलान मुस्कुराते हुए फोन पर बात करने लगा। सीन चेंज। ये कौन है? एनी इस चश्मे वाली लड़की को देखती हुई बोली। ये आज आई है, हमारे कमरे में ही रहेगी। मुंतहा एनी को देखती हुई बोली। आप लोग मुझसे दोस्ती करेंगे? आयमा सबको देखती हुई बोली थी। हाँ, क्यों नहीं? मुंतहा खुश दिली से बोली थी। आयमा मुस्कुराने लगी। लेकिन ख्याल रखना, तुम किसी को हमारे राज ना बताओ। एनी तीखे तेवर लिए बोली थी। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। जो भी बात हो मुंह पर कफल लगा लेती हूँ, किसी को मालूम नहीं होती। आयमा एनी की जानिब देखती हुई बोली थी। एनी जज्बात में सर हिलाने लगी। मुझे ना लड़कों से बहुत डर लगता है। आप मेरी दोस्ती दूसरी लड़कियों से भी करवा दीजिएगा जो लड़कों से दूर रहती हूँ। आयमा चेहरे पर मासूमियत तारी करती हुई बोली। फिर तुम ऐसा करो, सामने कमरे में हर्रम रहती है, मासूम और डरपोक है, इससे दोस्ती कर लेना। एनी कहती हुई लिपस्टिक लगाने लगी थी। आयमा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी जिसे इसने बरवक्त छुपा लिया था। सीन चेंज। महज चादर लेकर बाहर निकली तो शाह गाड़ी में बैठा इसका मुंतजर था। तुम इसे अपने साथ ले आओगी? शाह मुतहैयर सा बोला था। नहीं, अपने साथ कैसे ला सकती हूँ? जुलेखा बेगम कभी नहीं भेजेंगी इसे। महर तल्खी से बोली। फिर? शाह आईब्रो उचकाकर बोला था। मैं जाऊंगी तो सूरत हाल का अंदाजा होगा। तफ्तीश हो गई हो तो चलें अब। महर बगौर इसे देखती हुई बोली थी। मेरे सामने कम बोला करो तुम। शाह करख्त लहजे में बोला। महर ने जवाब देना जरूरी न समझा था। वो चेहरा मोड़कर शीशे से पार देखने लगी। शाह किलसकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। महर गाड़ी से बाहर निकलकर इस कोठे को देखने लगी थी जहां इसकी जिंदगी का एक हिस्सा गुजरा था। शाह गाड़ी में ही बैठा था। महर अंदर की जानिब चलने लगी। महर रानी के लबों से फिसला था। महर इसे नजरअंदाज किए जीने चढ़ने लगी थी। तवाइफे महर को देखकर चहमगोइयां कर रही थी। महर फिक्रमंदी से चल रही थी। कैसे इस लड़की से बात करूंगी? महर लब दबाए सोचती हुई चल रही थी। कुछ सोचकर वो जुलेखा बेगम के कमरे की जानिब चलने लगी।
जुलेखा बेगम बानी को हिदायत दे रही थी। जब नजर महर से टकराई थी तो लब मुस्कुराने लगे। महर? वो तपाक से मिली थी। महर चेहरे पर उकताहट सजाए बैठ गई थी। आपने अच्छा नहीं किया जुलेखा बेगम, महर मगरूराना अंदाज में बोली थी। गर्दन अकड़ी हुई थी। महर, तुम जानती हो हम अपनी जबान से नहीं फिरते। शाह साहब तुम्हें जबरदस्ती लेकर गए थे, वरना मैं तो कभी न जाने देती। वो मजलूमियत से बोली थी। महर के चेहरे पर बेजारी थी। हाय महर, तुम्हारे जाने से ये कोठा तो सूना सूना सा लग रहा है। सब तुम्हारा पूछते हैं। जुलेखा बेगम आ भरती हुई बोली थी। मैं अपना कमरा देखना चाहती हूँ। महर बोलती हुई खड़ी हो गई। हाँ हाँ, तुम्हारी अपनी जगह है, जहाँ मर्जी जाओ। जुलेखा बेगम मुस्कुराती हुई बोली। महर चलती हुई कमरे से निकल आई थी। जुलेखा बेगम फिर से बानी के साथ महव हो गई थी। महर आस पास देखती हुई संभल कर अपने कमरे में आ गई। किस्मत का हसीन इत्तेफाक के हरायमा इसके कमरे में ही रिहाइश इख्तियार किए हुए थी। महर को देखकर हरायमा का चेहरा खिल उठा। आप मुझे लेने आई हैं? वो महर की जानिब बढ़ती हुई बोली थी। महर को इस पर तरस आ रहा था। नहीं, महर धीरे से बोली। हरायमा की उम्मीद पर ओस पड़ गई थी। महर के हाथ जो इसने 1 मिनट कबल थामे थे, छोड़कर वो उल्टे कदम उठाने लगी। लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ, महर धीरे से बोली। वो मोहतात अंदाज में अकब में देखती हुई बोली। आप मुझे ले जाएंगी ना? वो बेयकीनी से डबडबाती हुई निगाहों से इसे देखती हुई बोली। अगर तुम साथ दो तो, लेकिन मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। महर इसके हाथ थामती हुई बोली। आप मुझे जैसे कहेंगी मैं वैसे करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ले जाएं अपने साथ। मुझे अम्मी के पास जाना है, पता नहीं किस हाल में हूँ। हरायमा रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज खामोश हो जाओ, वरना इन्हें शक हो जाएगा। ये नंबर रख लो। जिस दिन तुम्हें पार्लर लेकर जाएं, तुम नाजिया नाम के ब्यूटिशियन के फोन से मुझे कॉल कर लेना, फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी वहां से। महर ने सोचा हुआ प्लान इसे समझाया। जी ठीक है, वो चेहरा साफ करती हुई बोली थी। और हाँ सुनो, ये पार्लर तुम्हें तब भेजेंगे जब तुम इनके इशारों पर काम करोगी, समझ रही हो ना? फिलहाल जैसे वो कहती है मान लो इनकी बात। अगर बाहर निकलना चाहती हो तो। महर रुकर इसे देखने लगी। इनका एतमाद हासिल करो ताकि तुम्हें निकलने में आसानी हो। महर दरवाजे की सिमत देखती हुई बोली। हरायमा इस बात में सर हिलाने लगी थी। है तो काम मुश्किल, लेकिन सारी जिंदगी त्याग देने से यही बेहतर है। महर इसे देखती हुई उल्टे कदम उठाने लगी। हरायमा एक आस से महर को देख रही थी। अल्लाह करे आप मुझे यहाँ से निकाल लें, बे इख्तियार हरायमा के लबों से निकला था। इंशाअल्लाह। महर रुक कर बोली थी। धीरे से मुस्कुराई और बाहर निकल गई। हरायमा दरवाजे को देखने लगी। आंखों में उम्मीद के जुगनू टिमटिमाने लगे थे। महर चलती हुई बाहर निकल आई। छन छन की आवाज गूंज रही थी। महर आकर गाड़ी में बैठ गई। अब लेकर क्यों नहीं आई? शाह तंजिया बोला था। महर ने घूरने पर इक्तफा किया। शाह इसकी जानिब से जवाब का मुंतजर था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, शाह करख्त लहजे में बोला था। इस तरह से कैसे ले जा सकती हूँ मैं इसे? ये छोटी सी बात समझ नहीं सकते? महर दांत पीसती हुई बोली थी। तुम जैसी बेसब्री थी, मुझे लगा शायद साथ लेकर आओगी। शाह मुस्कुराता हुआ सामने सड़क को देखता हुआ बोला। महर ने बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया था। शाह ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी अनजान रास्तों पर भागने लगी। एकदम शाह ने ब्रेक लगाई। महर आगे को हुई, लेकिन सर डैशबोर्ड से टकराने से बच गया था। महर चेहरा मोड़कर इसे घूरने लगी। अब क्या मसला है? महर इसकी नजरें खुद पर महसूस करती हुई बोली। मुझे अपने बारे में बताओ। शाह इसके दोनों हाथ थामता हुआ नरमी से बोला। महर की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन फिर चेहरे पर सख्ती दर आई। मुझे कुछ नहीं बताना। महर बरहमी से बोली। अगर मैं तुमसे नरम लहजे में बात करता हूँ तो तुम्हारा मुंह सीधा नहीं होता। शाह तकरीबा चिल्लाया था। महर इधर उधर देख रही थी। वो शाह को देखने से गरेज बरत रही थी। मुझे मर्जात पर एतबार नहीं। महर की भर्राई हुई आवाज गूंजी थी। मैं तुमसे मोहब्बत के अहद व पैमान नहीं बांध रहा। तुम्हें साफ बताया है कि तुम्हें पाने के लिए ही तुमसे निकाह किया है, और तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखूंगा हवेली से दूर। फिर मुझसे क्यों हिचकिचा रही हो? मैं जानना चाहता हूँ। शाह का लहजा पुरतजस्सुस था। कुछ है ही नहीं बताने को। महर का चेहरा झुका हुआ था। तुम झूठ बोल रही हो। शाह बेयकीनी की कैफियत में बोला। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? महर आंखों की नमी छुपाने की गर्ज से चेहरा झुकाए हुए थी। मुझे एक बात बताओ, जब तुम रक्स करती थी तुम्हारी आंखों में कर्व होता था, क्यों? शाह सवालिया नजरों से महर को देख रहा था। जैसी वो जगह है, क्या नहीं होना चाहिए था? महर ने सुर्ख होती हुई निगाहें उठाकर शाह को देखा। शाह के लिए महर की आंखों में देखना दोभर हो गया था। इसने नजरों का जाविया मोड़ लिया था। वो दुरुस्त कह रही थी। इस जगह पर रहने के बाद ऐसी तोकू ही रखनी चाहिए। शाह का दिल मोम हो रहा था। शाह से कोई बात ना बनी तो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। महर सांस खारिज करती हुई अपने हाथों को घूरने लगी। तुम खाना बना लेना, मैं रात में आऊंगा।
गाड़ी घर के बाहर रोक कर शाह महर को देखता हुआ बोला था। महर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई थी। शाह ने जाने अनजाने में इसके जख्म कुरेद दिए थे। महर जख्मों की ताब न ला सकी थी और दरवाजे में ही बैठ गई थी। सालों पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। जो कर्ब वो जानना चाह रहा था फिर से महर के गेट डोलने लगा। महर ने आंसू बहाते हुए सर हाथों में थाम लिया था। कभी नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्यों बताऊं? किस बिना पर बताऊं? मर्द जात पर कभी एतबार नहीं कर सकती मैं। लहर चिल्ला रही थी खामोशी में। इसकी आवाज गूंज रही थी। इसके अंदर जल थल का मौसम रवा दवा था। तभी इसकी आंखें छोटी छोटी बातों पर भी बरसने लगती। जब जख्म गहरे हों और इन पर मरहम लगाने वाला कोई ना हो तो सब्र का पैमाना अक्सर व पेशतर लबरेज हो ही जाता है। मेहर के हाथ भीग रहे थे। आंखें जुल्म की दास्तान बनी हुई थी। क्यों याद करवा दिया है तुमने मुझे वो सब शाह? क्यों? मेहर हजियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। बुरा तो कभी नहीं था लेकिन तुम्हें वो कर्ब क्यों दिखाई दिया? क्यों मेरी जात के तह खानों में छुपे हुए राजों से रोशनाई हासिल करना चाहते हो? क्यों क्यों मुझे अजियत दे रहे हो? मेहर अश्क बहाती हुई चिल्ला रही थी। सीन चेंज। हरम कमरे के बाहर टहल रही थी क्योंकि पार्टी वाले दिन के बाद से जोनाश और इसके बीच में तनाव पैदा हो गया था। आयमा कमरे से बाहर निकली तो निगाह हर्रम पर पड़ी। आंखें चमकने लगी। अस्सलाम वालेकुम। आप हर्रम है ना? आयमा चेहरे पर मासूमियत तारी करती हुई बोली। वालेकुम अस्सलाम जी, लेकिन आप कौन? हर्रम ताज्जुब से बोली। मैं यहाँ नहीं आई हूँ। ये सामने वाला कमरा मेरा ही है। मैंने सुना है आप दिल की बहुत अच्छी हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोल रही थी। कमाल की अदाकारी थी। और मुकाबिल हरम जैसी सादा और मासूम लड़की हो और काबू ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। हरम मुस्कुराती हुई बोली। मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है लेकिन इनका हॉस्टल नहीं था, इसीलिए यहाँ आ गई। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? आयमा ने पहला पत्ता फेंका था। जी जरूर। हरम अपने ग्रुप से दिल बर्दाश्ता होने के बाद पूरा मान गई थी। आए वहां बैठकर बातें करते हैं। आयमा सीढ़ियों की जानिब इशारा करती हुई बोली। हरम मुस्कुराती हुई चल दी। सीन चेंज। सारी तैयारी कर ली है ना? अजलान चलता हुआ बोल रहा था। निगाहें मोबाइल की स्क्रीन पर थी। हाँ भाई, सब तैयार है। रात में फुल माहौल होगा। विक्की इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। चल अच्छी बात है, मजा आएगा। बोलते बोलते अजलान के लब दम बखुद मुस्कुराने लगे। हरम हाथ में पैसे पकड़े झुंझलाती हुई चल रही थी। हरम बैठकर लगा लो हिसाब। आयमा बमुश्किल इसके साथ कदम मिलाती हुई बोली थी। पता है, पिछले महीने मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, बस खाने पीने में ही उड़ा दिए थे सारे पैसे। हरम बोलती हुई चलती जा रही थी। चेहरा नीचे झुका रखा था। आमना भी फोन को देखती हुई चल रही थी। सामने सतून था और हर्रम इस बात से अनजान थी। वो सबक रफ्तारी से चल रही थी और सीधा सतून से जा टकराई। ओए अम्मी! हर्रम पेशानी मसलती हुई बोली थी। अजलान और इसका ग्रुप कुछ फासले पर था और हर्रम की ये कार्रवाई बआसानी देख सकता था। अजलान कहके लगाता हुआ हर्रम को देख रहा था जो अपनी पेशानी हाथ से मसल रही थी। अजलान सही कहता है, अंधी हूं मैं। तकलीफ के बाद हर्रम ने आंखें बंद कर रखी थी। पाँव अभी भी चल रहे थे। उम्मीद थी कि वो अगले सतून से भी जा टकराए। आमना मैसेज टाइप करती हुई इसके अकब में ही रुक गई थी और इस कार्रवाई से अनजान थी। हरम खुद को कोसती हुई चलती जा रही थी और फिर से सतून से टकरा गई थी। हाय अल्लाह! हरम सतून को घूरती हुई कर्राहने लगी थी। आज का दिन ही मनहूस है। हरम चेहरा मोड़कर आमना को देखती हुई बोली थी। अजलान और इसके ग्रुप के कहके बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हरम मुंह बिसोरती हुई अपनी पेशानी मसल रही थी। जब आमना इसके मुकाबिल आई थी। रुक क्यों गई? वो हरम को देखती हुई बोली। ना रुकती तो शायद तीसरा एक्सीडेंट भी हो जाता। हरम इसे घूरती हुई बोली। एक्सीडेंट? आमना ताज्जुब से बोली। ये मेरा सर नजर नहीं आ रहा क्या? हरम पेशानी पर हाथ मारती हुई बोली थी। आमना गौर से इसकी पेशानी देखने लगी जो वस से सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा था ना बैठकर लगा लो हिसाब। वो तीखे तेवर लिए बोली। अब तो हो गया, अब क्या फायदा कहने का? हरम मुंह बनाती हुई चलने लगी। बेगम साहिबा, अब देखकर चलना। अजलान इसके पास से गुजरता हुआ इसके कान के करीब होकर बोला था। हरम मुंह खोले इसे देखने लगी। हद है, इसने भी देख लिया। हरम तुम्हारा दिमाग ही खराब है। हरम फिर से खुद को कोसती हुई चलने लगी। तुम्हारे अब्बू से बात हुई है मेरी। वो कहते हैं कि इकरा घर नहीं आई। फिर कहाँ गई थी तुम? चौकीदार ऊंची आवाज में बोल रहा था। हरम पेशानी पर बल डाले इन्हें देखने लगी। अंकल, मैं घर ही गई थी। वो जोर देकर बोली थी। झूठ मत बोलो, मैडम के सामने मुझे जवाबदेह होना पड़ता है। तुम ऐसा करो, इधर ही रुको। मैं फोन करता हूँ तुम्हारे घर अभी और मैडम को बुलाकर लाता हूँ। खुद ही देखेंगी अब तुम्हें। चौकीदार फौरा से फोन निकालता हुआ बोला। हरम झुरझुरी लेती हुई अंदर आ गई।
यार हमारे हॉस्टल में कितने वाकया हो रहे हैं ना ऐसे। हरम कमरे में आती हुई बैग रखती हुई बोली, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट की लड़की का बताती हूँ। जोनाश आगे होती हुई बोली, क्या हुआ जोनी? आमना इसके सामने बैठती हुई तजस्सुस से बोली थी, तुमने वो लड़की देखी है, मोटी सी गोरी सी, जिसने डांस में हिस्सा लिया था? जोनाश दोनों को देखती हुई बोली थी। हर्रम और आमना नफी में सर हिलाने लगी। यार वो जो उस्मान नामी लड़के के साथ अक्सर घूमती नजर आती है, जो कोए जैसा है, मेरा मतलब काला सा ढांचा नुमा। आपकी बार अंशरा नक्शा खींचती हुई बोली थी, हाँ याद आ गया। हरम हंसती हुई बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना, कोए से याद आएगा। अंशरा हमेशा इस लड़के को कोआ ही कहती थी। अच्छा सुनो, कल मालूम हुआ वो लड़की प्रेग्नेंट है। सोनाश पूरी आंखें खोले दोनों को ही देखती हुई बोली थी। हरम और आमना एक दूसरे को देखने लगी। यार मजाक ना कर, आमना बेएतबारी से बोली, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? अंशरा आमना को घूरती हुई बोली, मुझे तो अपनी यूनि के स्टूडेंट्स को देखकर ही डर लगने लगा है। हरम होंक सी बोली थी, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शोहर भी तो वहीं होता है। जोनाश ताना देती हुई बोली, होता तो है लेकिन फिर भी। हरम अजलान के जिक्र पर खुद में सिमट गई थी। और हाँ, मैं बताना भूल गई, अजलान कह रहा था आज पार्टी है इसके फार्म हाउस पर। हम हॉस्टल से मार्केट जाने का बोलेंगे और वो हमें पिक कर लेंगे। सोनाश कहकर सबको देखने लगी, अजलान मुझे भी तो कह सकता था ना। हरम दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी, अब टाइम पर तैयार हो जाना सब, ये पार्टी वो अपनी जीत की खुशी में दे रहा है। सोनाश अलमारी की जानिब बढ़ती हुई बोली थी, हाय मैं अपने कपड़े ढूंढूं, पता नहीं कौन से कोने कुदरों में पड़े हुए हैं। आयशा जुस्त लगाती हुई बेड से उतर गई थी। हरम खामोश हो गई थी, इस तरह से जाना मुनासिब है भी या नहीं, अल्लाह जाने। हरम के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। सीन चेंज। शुक्र है तुमने भी शक्ल दिखाई, वरना मैं तो सोच रहा था भूल गए हो। बुरहान खफगी से बोला था, आपको कैसे भूल सकता हूँ, बस भाई ने बिजनेस में मसरूफ कर दिया है, फिर खुद निगरानी कर रहे हैं मेरी। शावेज मुंह बसोरता हुआ कुर्सी पर बैठ गया था, पाँव टेबल पर रख लिए थे, इस तरह के दोनों पाँव आपस में जद खा रहे थे। मुस्तफा ठीक नहीं कर रहा है वैसे। बुरहान सिगरेट का कश लेता हुआ बोला, यार भाई बल्कि सब घर वाले क्यों आपसे दूर रखते हैं मुझे? शावेज उलझकर बोला, जब से वो कार हादसा हुआ है शाह इसके बाद से ऐसा करता है, जबकि किसी जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बुरहान तासुब से बोला, फिर अब क्यों नहीं है? शावेज ने बेचैनी से पहलू बदला, मैं खुद भी लाइल्म हूँ, ये तो शाह बता सकता है। बुरहान बेचारगी से शाने उचकाता हुआ बोला, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है और भाई हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वजह मैं भी जानकर रहूंगा। शाहवेज बागी हो रहा था, हाँ तुम्हें जरूर जानना चाहिए। बुरहान शाहवेज को देखता हुआ बोला था, जिसके चेहरे पर बरहमी के आसार थे। शाहवेज बिना कुछ कहे उठकर चला गया था। वो गाड़ी में आकर बैठा ही था कि एनी की कॉल आने लगी। हाँ बोलो एनी। शाहवेज के चेहरे पर खपकी तारी थी। शाहवेज, तुम अपने घर कब बात करोगे? मुझे लगता है हमें अब मंगनी कर लेनी चाहिए। एनी फिक्रमंदी से बोली थी, एनी देखो फिलहाल मैं मंगनी या शादी इन मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। शावेज बेजारी से बोला, शावेज तुम्हारे लिए शादी मुसीबत है? एनी की आंखें बाहर निकल आई थी। और क्या, ये लाइफ अच्छी है, आराम से मजे करो, वो क्या जिम्मेदारी सर पर ले लो। शावेज हुंकारा भरता हुआ बोला, तुमने पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। एनी टूटे हुए लहजे में बोली, तो बेबी तुम क्यों इस सब के बारे में सोच रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे, बस बात खत्म। ये शादी अभी सोचने की चीजें नहीं है। शावेज खुद भी उलझ रहा था। अच्छा ये बताओ, शादी मुझसे ही करोगे ना? एनी ने खदशा जाहिर किया। जाहिर है तुमसे ही करूंगा, और मैंने हमसायों की लड़की से करनी है। शावेज उकताकर बोला, बस फिर ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। एनी खुशी से निहाल हो गई थी। अभी बाहर हूँ, घर जाकर बात करता हूँ, शावेज ने कहकर फोन बंद कर दिया। बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम है कि हम शाह लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते, और मैं इस जैसी लड़की से शादी करूंगा जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। पागल समझ रखा है मुझे, जो मेरे साथ पूरी पूरी रात गुजारती है, न जाने किस किस को फंसा रखा होगा। शावेज हुंकारा भरता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सीन चेंज। सुन लो शाह, छोटा फिर से बुरहान के साथ है आज। कमाल साहब कर्जदार आवाज में बोले थे, जी मेरे इल्म में भी आया है, आप फिक्र मत करें, मैं इसका इलाज करता हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। शाह जब्त करता हुआ बोला, और हर्रम का भी ख्याल रखना था, ठीक है ना वो? कमाल साहब जोमानी जुमलों का तबादला करते हुए बोले थे, जी मैंने चौकीदार को खास ताकीद की है, ऐसा कोई मसला नहीं, वैसे भी मुझे भरोसा है अपनी बहन पर। शाह के लहजे में मान था। ये लो दूध पी लो बादाम वाला। सोफशा बेगम कमरे में आती हुई बोली थी। मुलाजमा ने ट्रे शाह के आगे रख दी थी। अम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, शाह खफगी से बोला।
तुम रख कर जाओ बाहर। वह मुलाजमा की जाने मतवज्जा होती हुई बोली, माँ बाप के लिए बच्चे सारी उम्र छोटे ही रहते हैं, सारा दिन काम काज में लगे रहते हो, देखो कितने दुबले हो गए हो, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते हो, बीवी हो तो तुम्हारे कान खींचे। वो खफगी से बोली। शाह तेवरिया चढ़ाकर इन्हें देखने लगा। क्लास पकड़ता हुआ हाथ हवा में ही मौलक हो गया था। बेगम सोच कर बोला करें। कमाल साहब नाराज नाराज से बोले थे। जोफ्शा बेगम गड़बड़ाकर शाह को देखने लगी। मेरे मुंह से निकल जाता है, उम्र हो गई है ना, वो संभल कर बोली। अच्छे से जानता हूँ, बाकी मामलात में तो ये उम्र आड़े नहीं आती। शाह इन्हें घूरता हुआ बोला। अच्छा आप पकड़ लो ग्लास, हर वक्त माँ के पीछे ही पड़े रहते हो, वो मुंह बनाती हुई बोली थी। बात वही करें जो बनती हो, बिला वजह अपने दिमाग पर जोर मत डाला करें। शाह ग्लास उठाता हुआ बोला, मैं समझाऊंगा, तुम पियो। कमाल साहब शाह के शाने पर हाथ रखते हुए बोले, बाबा साईं, आज मुझे कुछ काम है, ईशा की नमाज पढ़कर मैं चला जाऊंगा, कल फिर छोटे को देखूंगा। शाह खड़ा होता हुआ बोला, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारे लिए आसानी हो। वो अज़बात में सर हिलाते हुए बोले। शाह चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। बाजू आगे करके घड़ी पर टाइम देखा था। 5 मिनट है जमात खड़ी होने में। नमाज पढ़ के महर के पास जाता हूँ। शाह बोलता हुआ हवेली से बाहर निकल आया। मस्जिद से बाहर निकलकर शाह ने अपनी गाड़ी की जानिब रुख किया था। सर्दी के बाद कांधे पर शाल ओढ़ रखी थी। शाह अपनी शाल दुरुस्त करता हुआ अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आज शाह सियाह शलवार कमीज में मलबूस था, जो इसकी शख्सियत को चार चांद लगा रही थी। जो ही वो लॉन्ज में आया था, नजर महर से टकराई थी, जो कमरे के दरवाजे के बाहर बैठी थी। महर, यहाँ क्यों सो रही हो? शाह ताज्जुब से बोलता हुआ इसके पास आ गया। महर? शाह इसका रुखसार थपथपाता हुआ बोला था। महर, यहाँ क्या कर रही हो? शाह को इसका यहाँ बैठना समझ न आया था। महर हल्की हल्की आंखें खोल रही थी। महर का जिस्म बर्फ हो रहा था। शाह ने मजीद वक्त जाया किए बिना इसे बाजुओं में उठा लिया। शाह की खुशबू महर के नथुनों से अंदर दाखिल होने लगी। शाह का लम्स महसूस हुआ। महर ने पूरी आंखें खोल दी। शाह का चेहरा इसके चेहरे के करीब तरीन था। महर आंखें सुकोड़कर शाह को देखने लगी, जो बेड के पास आ रहा था। महर को बेड पर लेटाया, इस पर लिहाफ ओढ़ाकर इसके सरहाने बैठ गया था। शाह ने तकिए पर बाजू रखी थी, अपना चेहरा महर के चेहरे के करीब ले आया। महर पेशाने पर बल डाले इसे घूर रही थी। मुझे ये बताओ, वो कौन सी जगह है सोने की? शाह इसकी बुरी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम्हें क्या, मैं जहां मर्जी सोऊं? महर खफा खफासी बोली। शाह इसकी भूरी झील सी गहरी आंखों में डूबता जा रहा था। तुम्हारी छोटी सी नाक पर हमेशा गुस्सा सवार रहता है। शाह इसकी नाक दबाता हुआ बोला। पीछे हटो। महर इसके सीने पर शहादत की उंगली रखती हुई बोली। क्यों? शाह इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। क्योंकि मैं कह रही हूँ। महर को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। शाह की कुर्बत में वो पिघलने लगी थी। तपती धूप की सहरा में शाह साइबान लगता था, बिल्कुल ऐसे चश्मे की माने जो शहर में आंखों की ठंडक महसूस होता है। मैं तुम्हारा हुक्म मानने का पाबंद नहीं। शाह इसके नर्म व नाजुक हाथ को देखता हुआ बोला। मैं भी तुम्हारा हुक्म मानने की रवादार नहीं। महर अपना हाथ खींचती हुई बोली। जब जब तुम ऐसा करती हो ना, बहुत बुरी लगती हो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ सुकून की खातिर, लेकिन तुम मेरा रहा सहा सुकून भी गारत कर देती हो। शाह बरहमी से बोलता हुआ पीछे हो गया। महर मुस्कुराती हुई उठ बैठी। लेकिन तुम फिर भी ढीठ बनकर आ जाते हो। महर अपने मुंतशर बालों को समेटती हुई बोली थी। शाह ने एक कहर आलूद नजर महर पर डाली थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। महर बाल बांधती हुई ढिठाई से बोली थी। शाह किलस कर दूसरी जानिब देखने लगा। कब तुम्हें तमीज आएगी? शाह इसकी बाजू पकड़कर रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। जो तुम्हारा हाल है इस लिहाज से तो कभी नहीं। महर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालती हुई बोली। शाह दांत पीसता हुआ महर को घूरने लगा। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? महर पुतलियां सुकोड़ कर बोली थी। आज महर ने इसे सताने का कसद कर रखा था। बिल्कुल भी नहीं। शाह मुस्कुराकर इसके बाल खोलता हुआ बोला। शाह महर का चेहरा हर्फ ब हर्फ पढ़ रहा था। महर की मुस्कान फीकी पड़ी, फिर इश्ताल अंगेज आंखों से शाह को घूरने लगी थी। महर अपनी बाजू आजाद करवा कर बेड से नीचे उतर गई। इससे कबल के वो कमरे से बाहर निकलती, शाह इसकी राह में हायल हो गया। क्या मसला है? महर तीखे तेवर लिए बोली। पता है, मेरी छठी हिस्स कहती है तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। शाह इसे अपने करीब करता हुआ बोला था। तुम्हारी खुशफहमी है। महर इस्तेहाजा हंसी थी। शाह ने इसकी पुश्त पर हाथ रख के इसे अपने सीने से लगा लिया। एक दिन ऐसा जरूर होगा और तब तुम्हारे लबों पर सिर्फ शाह का नाम होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ। शाह इसके कान में सरगोशी करने लगा था। बला का एतमाद था इसके लहजे में। महर की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। वो मामूल से हटकर अजीब ही लय पर धड़क रही थी। महर को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी, मानो दिल अभी बाहर निकल आएगा।
اگر سچ میں مجھے شاہ سے محبت ہو گئی پھر یہ نزدیکیاں کسی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ مہر اس کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی۔ عجیب ہی فطور تھا شاہ کی قربت کا۔ مہر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ شکست نہیں چاہتی تھی لیکن شاہ کی قربت میں دل بے قابو ہو رہا تھا، بغاوت پر اتر رہا تھا۔ مہر کی دھڑکنیں شاہ کی دھڑکنوں کے سنگ چلنا سیکھنے لگی تھی۔ یہ شاہ کا سرور تھا جو مہر کو چاروں شانے چت کر رہا تھا۔ ستن ظرفی یہ کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی چونکہ دل ہی دشمن جان سے جا ملا تھا۔ شاہ مجھے چھوڑو۔ مہر آنکھیں کھولتی ہوئی اس کی گرفت میں کس مسائی۔ یہ شاہ کی گرفت ہے، آزاد کروا سکتی ہو تو کروا لو۔ شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پلیز۔ مہر ایک جنگ شاہ سے لڑ رہی تھی تو دوسری اپنے دل سے، اور ان دونوں کے بیچ وہ نڈال ہو رہی تھی۔ جب شاہ کا دل کرے گا تمہیں آزاد کر دے گا، ابھی میں ایسا قصد نہیں رکھتا۔ شاہ کو اس کا جھکنا لطف دے رہا تھا، اس کا غرور ہی تو توڑنا چاہتا تھا وہ۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مہر اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ تمہیں زیر کرنا، شاہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہ کی گرفت کمزور ہوتی دیکھ کر مہر نے اسے خود سے پرے کر دیا تھا۔ بہت غلط بات ہے۔ شاہ بولتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، خبردار اگر مجھے روکا تو۔ مہر پیشانے پر بر ڈالے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑتی ہوئی بولی تھی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے دیا۔ مہر سر جھکاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.